So, greeting students. Next, one of the important topics of chapter electricity that we're gonna start. The name of the topic is combination of resistance or resistors. So, we already discussed what are resistors. So, resistors are the devices which provide the resistance. कि मतलब मान लो कोई वायर है तो उसके अंदर उसकी हमको पता होनी चाहिए कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है. So, resistors are the devices which provide the resistance. So, most commonly we say the combination of resistance कि जब हम resistance को connect करते हैं तो क्या होगा. So, there are two types of combinations which are possible. First is in series, second is in parallel. So, there are generally two types of combinations possible in connections of resistance. So, we will discuss them one by one. So, first is when they are connected in series. Second is when they are connected in parallel. So, we will start with the discussion called series. So, they are generally classified into, or they are generally can be defined in two manners. First is definition, second is meaning. So, first is definition. If in exam question is what is series combination, in that topic you have to write when two or more resistance are connected end to end. कि जब हम क्या करते हैं कि किसी दो रेजिस्टेंस लेते हैं और उनको एंड टू एंड हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. कि फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला था, मान लो इसका एंड कितना है, ये एक एंड ये है और एक एंड ये है. दूसरा रेजिस्टेंस हमारी ये है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड. तो व्हेन दे आर कनेक्टेड end to end, it is called series combination. So the meaning of series combination is when series के अंदर हम किसी सर्किट बना रहे हैं या सीरीज के अंदर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो मीनिंग ऑफ सीरीज सर्किट मीन रेजिस्टर्स आर अरेंज इन ए चेन. कि रेजिस्टर्स को हमने कैसे कनेक्ट किया, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए मैनर सिमिलर टू चेन. कि जब हम चेन बनाते हैं, जैसे मेटल की चेन होती है, तो उसमें जनरली क्या रहते हैं, आपके इस तरह से रिंग्स रहते हैं और वो रिंग्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड चेन लाइक अरेंजमेंट और सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड चेन लाइक अरेंजमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म related to the series combination is written here. What is written here? When current has only one path to take. कि करंट के पास जाने के लिए, फॉलो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है. So this is the one of the simplest series circuit और series combination diagram. कि हमने क्या किया है, we have connected the resistors in series. So how you can represent कि कम से कम दो तो होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे ना कि रेजिस्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में. सो एज यू कैन सी द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड. सो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, फर्स्ट वन वी हैव थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3. They are all connected end to end. Now these three resistors, when after connecting them end to end, they are connected to a source of potential difference. That source of potential difference is battery, and battery is having two cells, first cell, second cell, and they are connected to each other. Next is a key is here, and one voltmeter to measure the potential difference across the circuit, and one ammeter is there to measure the amount of electric current. So this is the simplest diagram of resistors connected in series, and we have already discussed what will be the direction of flow of current from the positive terminal to the negative terminal. अब इसके अंदर वो क्या बोल रहे थे कि when current has only one path to take, कि करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है फॉलो करने के लिए. यहाँ पे ये क्या है, वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर तो क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट. तो ये हमारा करंट यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अब करंट जब यहाँ पे आएगा, लीव दिस वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर को आप एक बार भूल जाओ कि यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है.
सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग, अब करंट यहाँ से जा रहा है, अब जाने के लिए यहाँ पे इंटरफेरेंस तो है, ये सेम उसी तरह से है कि रेजिस्टेंस आर सिमिलर टू दी रोड ब्लॉक्स, कि रोड पे ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, कि मान लो यहाँ पे नॉर्मल स्पीड थी, वायर में से जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई इसके पास, फिर उसके बाद फिर वो पास करेगा, फिर रेजिस्टेंस आ गई, फिर वो पास करेगा, फिर रेजिस्टेंस आ गई। तो करंट के लिए जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है जहां से वो जाएगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो R1, R2, R3, और अल्टीमेटली वापस वो किस में आ जाएगा, बैटरी के अंदर। सो नेक्स्ट इज व्हेन resistors are connected in parallel. So second combination in which resistors are connected is called parallel combination. So in parallel combination, if question is define the parallel combination of resistors, what you have to write, when two or more resistance are connected between the same two points. So this is for the definition purpose, but first understand the meaning of parallel combination. In series combination what was there, they were connected end to end, कि इसमें क्या था कि आपका फर्स्ट रजिस्टर है उसका जो एंड है वो दूसरे रजिस्टर की स्टार्टिंग के साथ कनेक्टेड था, इसी तरह से थर्ड के साथ। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, लेट अज्यूम दिस इज द फर्स्ट, ये इसकी क्या हो गया हेड और ये इसका क्या हो गया टेल, सेकंड हेड टेल, थर्ड हेड एंड टेल। So this is, there are three resistors, head, tail, or starting point or final point, initial, final. But you can be this can be easily understood by taking this at head and tail. Now move to this point, parallel circuit in which resistors are arranged with their heads connected together. तो जब हम parallel में connect करेंगे तो first, second और third इन तीनों के हेड को हम क्या करेंगे, एक साथ कनेक्ट कर देंगे। सेकेंड, देयर टेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, और इन तीनों को हम एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे सीधे, कि पहला था हमारा, उसका हेड हो गया ये उसकी टेल हो गई। अब दूसरा आया, दूसरे को हमने क्या किया, इसके हेड के साथ कनेक्ट कर दिया और ये उसकी टेल उसके टेल के साथ कनेक्ट होगी। थर्ड आया, थर्ड के हेड को भी हमने इस पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया और उसकी टेल को भी हमने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि जब हेड्स और टेल दोनों, हेड्स का एक कॉमन पॉइंट है कनेक्शन का, टेल्स का एक कॉमन पॉइंट है कनेक्शन का। हेड और टेल की बजाय आप ये भी बोल सकते हो कि देयर कनेक्टिंग पॉइंट्स आर कॉमन, कि फर्स्ट साइड में ये पॉइंट है कॉमन, सेकेंड साइड में ये पॉइंट है इसके अंदर कॉमन। सो in this circuit current will have to follow the different paths. So the main difference between series combination and parallel combination is, first is their arrangement, end to end arrangement, and second is connected at same point, कि head एक साथ connected है, tail एक साथ connected है। So second difference is this point, कि in case of series arrangement when current has only one path to take, कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ सीरीज की करंट यहाँ से बैटरी में से निकला और कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब इसको R1 के अंदर से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। दिस इज द मीनिंग ऑफ करंट हैज ओनली वन पाथ टू टेक, कि अब हम कहीं जा रहे हैं तो उधर जाने के लिए अगर एक ही रोड है तो हम उसी रोड को फॉलो कर सकते हैं, सेकंड को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये यहाँ से जा रहा है, पासिंग थ्रू द R1, देन टू द R2, देन R3 एंड अगेन कमिंग टू द circuit. But in case of parallel combination, what happens? So these three resistors are connected in parallel to each other. Let's assume current is flowing through that circuit. अब यहाँ से वो जा रहा है, हम कहाँ आ गए, इस पॉइंट के ऊपर। Let assume this is the point A and this is the point B. अब यहाँ पे करंट के आने के बाद उसके पास तीन रास्ते अवेलेबल हैं। There are three paths available through which current can flow. कि करंट, थोड़ा सा करंट ऊपर जा सकता है, लेट अज्यूम दिस इज द I1 और यहाँ से चला गया I2 और यहाँ से चला गया I3। तो करंट हैव थ्री पाथ्स टू फॉलो, भाई मुझे यहाँ से कहीं जाना है और वहां जाने के तीन रास्ते हैं, तो उस तीन रास्तों में से मैं कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा हूँ वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरफ से जाना है, ठीक है, किस तरफ से मुझे जाना सही लगेगा। तो I1, I2, I3,
So this is the parallel combination. The second diagram represented here is the parallel combination of resistors, कि जब हम parallel में connect करेंगे तो resistors कैसे connect होंगे. First is the source of potential difference, which is battery. Second is key. Next is connecting wire, which having the straight wire mean कि उसके अंदर कोई भी resistance नहीं है. It is allowing the current to pass through them. Current की direction क्या रहेगी? From positive to negative terminal. Now R1, R2, R3 three resistors are connected. Head उनके एक single point के ऊपर हमने connect किया, let us assume A. Tail हमने एक common point के ऊपर connect किया, let us assume this is the B point. So from R1, R2, R3. तो जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, करंट को तीन रास्ते अवेलेबल हैं. करंट है थ्री पाथ्स टू टेक, आइदर I1, I2, I3, और इन तीनों में से निकल के जब वो बाहर आएगा और इकट्ठा होके कहाँ वापस आ जाएगा, इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर. तो यहाँ पे अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि कितना करंट आया है हमारा, वी कैन कनेक्ट दी पोटेंशियल. यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर, सॉरी वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ combination of resistors. We will also discuss in detail कि what happen in case of series combination, what happen to the resistance in case of parallel combination. One more thing कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो पूरा सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. बट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. मीनिंग क्या है इस चीज का कि लेट अज्यूम 5 5 5 कि R1, R2 एंड R3 आर 5 5 5 ओम. तो इसके केस में क्या हो जाएगा आपका कि जब हम इनको ऐड करेंगे 5 + 5 + 5 15 ओम. तो टोटल जो when we connect the resistors in series, the total resistance will be more than the इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. और यू कैन ऑल्सो राइट कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो पूरा सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. कि फर्स्ट की कितनी है 5 ओम 5 ओम 5 ओम. जब हम तीनों को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर आपसे कोई पूछता है इन 1 मार्क क्वेश्चन हाउ वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3, 5, 6, 7, whatever the values are given, and they will ask you how we can increase the resistance and how they should be connected, means resistors, how resistors can be connected so that the total resistance of the electric circuit will increase. So the answer should be they should be connected in series combination. और इसका अपोजिट है, अगर हमको डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, when they have to be when the total resistance और equivalent resistance should decrease, कि जब हमको ऐसे कनेक्ट करना है रजिस्टर्स को कि उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट की कम हो जाए. सो पैरेलल combination to increase the resistance, series combination to decrease the resistance, parallel combination. So in next modules we will discuss about the discuss them individually, series combination, parallel combination, and what are the equations of series combination, parallel combination, why in series combination the total resistance increases, why in parallel combination the total resistance decreases. So this is the introduction of combination of resistors. Thank you students.